میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پروفیسر کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے یا کیسے جانتا ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ کہیں وہ پروفیسر کو اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے. منفی مقاصد، ہاں منفی مقاصد. اور اشوک مہتا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا. زمین میں قدیمی تہذیب آثار ہی دفن نہیں ہیں اور قدیم قوموں کے زار و جواہر زمین کے سینہ مالا مال ہے. قدیم سکے، قدیم سونا، قدیم ہیرے، قدیم ظروف، قدیم گہنے، قدیم اوزار اور قدیم تاج و تخت، اور یہ سبھی تو قدیم تہذیبوں کا حصہ ہے اور زمین کے سینے میں دفن ہیں. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نثار کرمانی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. یہ امکان بھی ہے کہ مارٹن پروفیسر راہیل کو لے کر بھارت چلا جائے اور وہاں سے مصر بھی جا سکتا ہے. اشوک مہتا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا. سوال یہ ہے کہ پروفیسر راہیل اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جائے گا. اگر وہ اپنی مرضی سے نہ گیا تو اسے زبردستی بھی لے جایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پروفیسر خطرے میں ہے. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. اور اشوک مہتا نے کہا. کیا ہم اس خطرے سے پروفیسر کو آگاہ کر سکتے ہیں؟ نثار نے کہا. اور ہم بے اختیار لوگ ہیں، صرف سوچ سکتے ہیں. اگر کچھ کرنا چاہیں تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ 2-4 ماہ کے لیے پروفیسر راہیل کو کہیں بھیج دیں، مثلا لاہور، پنڈی، پشاور یا کوئٹہ وغیرہ. سب سے پہلے تو یہ معلوم کیا جائے کہ سرور ندیم کیوں نہیں آئے، اور یہ بھی تو میں ابھی تک جاتے جاتے معلوم کر لوں گا. نثار کرمانی نے کہا. میرا خیال ہے کہ اب مزید تو کوئی بات نہیں کرنی اور اس کے لیے مجھے اجازت دیں اور کل پھر کسی وقت ملاقات کروں گا. 6 بجے کے بعد ہی میں گھر پر ہوتا ہوں. اشوک مہتا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا. نثار کرمانی کو رخصت کرنے کے بعد مکان کے اندرونی حصے کی طرف جاتے ہوئے اشوک مہتا نے سوچا، نثار کرمانی سے کہیں زیادہ کام کا آدمی ندیم سرور ہے. اگر وہ آ جاتا تو پروفیسر کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہو جاتی. اس نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ پروفیسر یوں تو لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نوشین سے بہرحال وہ زیادہ قریب ہے. نوشین سے ملاقات ضروری ہے. اور اشوک مہتا نے فیصلہ کن انداز میں سوچا. نوشین سے نثار کرمانی کی غیر موجودگی میں ملاقات کی جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ نثار کی موجودگی میں پروفیسر سے اپنے تعلق کے بارے میں نہ کھل کر بات کرے گی اور نہ اس کی ذات کے بارے میں. جو کچھ فوزیہ نے پروفیسر کے بارے میں بتایا ہے، اگر نوشین اس کی تصدیق کرتی ہے تو پھر یہ بات صاف ہو جائے گی کہ پروفیسر کو کسی لڑکی کے ذریعے کام پر آمادہ کرنا مشکل ہے. اشوک مہتا نے فوزیہ سے کئی ملاقاتیں کی تھی اور پروفیسر کے بارے میں بیشتر معلومات فوزیہ نے بہم پہنچائی تھی. فوزیہ حسین ہی نہیں، سمجھدار اور پختہ ذہن کی مالک بھی تھی. پروفیسر سے دوسری ہی ملاقات کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ پروفیسر کو دل دے بیٹھی ہے. چونکہ وہ یک طرفہ اور خاموش محبت کا قائل نہیں تھی، اس لیے 4-6 ملاقاتوں کے بعد ہی اس نے کوشش کی تھی کہ پروفیسر اس کے حسن کا اسیر اور محبت کے غم میں گرفتار ہو جائے. لیکن جب پروفیسر کے رویے نے فوزیہ کو یہ احساس دلا دیا کہ اس کی ذات میں پروفیسر کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، تو پھر ایک دن اس نے اظہار محبت کر دیا. لیکن تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ فی الحال میں تو صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہوں، اور جس دن میں اپنی ذات کے اثار سے باہر نکلوں گا اس دن شاید میرا رویہ تمہاری طرف ہو. اور پروفیسر نے فوزیہ کو ٹکا سا جواب دے دیا. کیا آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور فوزیہ نے بے تابی سے سوال کیا. تم اسے نہیں جانتی اور کوئی بھی اسے نہیں جانتا، صرف میں اسے واقف ہوں، اور اس کا حسن لازوال میرے رگو وپے میں گردش کرتا ہے اور اس کی محبت میرے ذہن کے گوشے گوشے پہ براجمان ہے. اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو میری سانسوں میں رچی بسی ہے. میں چاندنی راتوں میں اس کی آہٹ، اس کی چاپ اور اس کا لمس محسوس کرتا ہوں، وہ لمس جو مجھے مخمور مدہوش اور اپنی ذات سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور پھر میں انسان نہیں رہتا، خود کو سانپ محسوس کرنے لگتا ہوں. ایسا سانپ جو اپنی محبوبہ کی تلاش میں سرگرداں ہو. اور تم نہیں جانتی کہ میں صدیوں کا سفر طے کر چکا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ ابھی کتنی صدیوں کا سفر درپیش ہے. پروفیسر نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا، اور اس جواب کے باوجود فوزیہ اپنے دل و دماغ سے پروفیسر کو نہیں نکال سکی. پروفیسر کا خیال تھا
कि वो उसे घर आने से रोक देगी और ट्यूशन का सिलसिला ख़त्म कर देगी और उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन फौजिया ने यह सब कुछ नहीं किया। उसे शायद ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल प्रोफेसर उसे चाहने लगेगा। अशोक मेहता ने अपने ख्यालात से चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठाकर फौजिया के नंबर डायल किए। हेलो, और दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने के बाद उसने कहा, हेलो फौजिया भट्ट, आप कौन साहब हैं? अशोक मेहता। खैरियत अशोक साहब, इस वक्त बस बैठे बैठे तुम्हारा ख्याल आ गया, अशोक ने नरम लहजे में कहा। और प्रोफेसर राहील के क्या हाल हैं? ठीक ही होंगे, और फौजिया भट्ट ने कहा, और उसके लहजे में बड़ा कर्ब था। जब से उन्होंने हमारे घर आना छोड़ा है, बस गाहे बगाहे सरसरी अंदाज में मुलाकात होती है और कई दिनों से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए उनसे कहीं टकराव नहीं हुआ। सुबह का क्या प्रोग्राम है? यूनिवर्सिटी जाने का इरादा तो है, और फिर तो प्रोफेसर से टकराव होगा, अशोक ने कहा। कोई ज़रूरी भी नहीं, मुमकिन है वो खुद ना आए। अगर वो यूनिवर्सिटी ना आए तो तुम उनके होटल चली जाना, अशोक मेहता ने कहा। प्रोफेसर को होटल के उस कमरे की बजाय किसी मकान में रहने पर आमादा करो फौजिया, और ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम कर सकती हो, कोशिश तो करो। उसे मशवरा तो दो कि वो होटल का कमरा छोड़ दे। इतना बड़ा आदमी तीसरे दर्जे के होटल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगता। और शायद आपको मालूम नहीं कि मैंने इस मसले पर बात की थी, लेकिन वो अपने कमरे में रहने पर मिस्र हैं। क्या खास बात है उस कमरे में? घुटन, फौजिया ने कहा। घुटन है उस कमरे में, और प्रोफेसर का कहना है कि फितरतन उन्हें घुटन पसंद है। खुली फिजा और साफ सुथरी हवा उन्हें बीमार कर देती है। चंद लम्हे अशोक मेहता सोचता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसके लिए घुटन वाले मकान का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरे एक अजीज का मकान है और वो महज इसलिए खाली रहता है कि उसमें घुटन है। वो मकान हवा के रुख पर भी नहीं, और जिस जमीन पर वो मकान तामीर हुआ है वो जमीन भी सेलन ज़दा है। सेलन के असरात फर्श और दीवारों पर भी नजर आते हैं। अगर प्रोफेसर उस मकान है, कहाँ वो मकान? और फौजिया ने अशोक की बात काट कर कहा, कैंट के इलाके में है। पहले वो मकान आप मुझे दिखा दें। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम मेरे घर आ जाओ, अशोक ने कहा, और मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा। और तुम्हें तो कोई बात नहीं करनी है, रिसीवर रख रहा हूँ। नहीं, मैं सुबह आ रही हूँ। अशोक मेहता ने रिसीवर रखकर सोचा, और उस लड़की से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। ये मोहब्बत में नहीं तो इंतकामन ही बहुत कुछ कर सकती है। और जब से प्रोफेसर का झुकाव नौशीन की तरफ हुआ था, फौजिया कांटों पर लौटने लगी थी, और ये बात अशोक मेहता के इल्म में भी थी। यूनिवर्सिटी का माहौल गुज़श्ता 2 हफ्ते से बहुत कशीदा था। तलबा के कई ग्रुप आपस में दस्तों गिरेबान थे। हथियारों की आज़ादाना नुमाइश हो रही थी। गाहे बगाहे फायरिंग की आवाज़ से पुरसकून फिजा लरजने लगती, और पहले दिन होने वाली फायरिंग में कई तलबा जख्मी हो गए थे। उस फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन बिगड़े हुए हालात पर काबू पाने में पुलिस नाकाम हो गई थी। 2 हफ्ते की कशमकश, हंगामे और कशीदगी के बाद यूनिवर्सिटी को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। यूनिवर्सिटी पर ताला लगने के बाद दीगर तालीमी इदारों का खुला रहना कैसे मुमकिन था, और सूबे भर के कॉलेजों और स्कूलों पर भी ताले पड़ गए। तालीमी इदारों के दरवाजे बंद होने के बाद उस्ताद बेकार होकर कह रह गए, और प्रोफेसर राहील का दिल यूं भी यूनिवर्सिटी में कम ही लगता था, और यूनिवर्सिटी बंद होने की खबर उसके लिए इत्मीनान बख्श थी। जिस दिन यूनिवर्सिटी बंद होने का ऐलान हुआ, उसी दिन सरवर नदीम दोपहर के खाने के बाद उसके कमरे में पहुंचा था, और तुम बर वक्त आए हो, और मैं बस निकलने ही वाला था। प्रोफेसर राहील ने सरवर नदीम को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, और आज तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। फौजिया से मिलने गया था, और सरवर नदीम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो तो घर पर थी ही नहीं। क्यों, कोई खास काम था फौजिया से? खास काम तो कोई नहीं था, कई रोज से नजर नहीं आई, और सोचा कहीं बीमार ना हो, इसलिए चला गया था उसके घर। 2-3 दिन पहले वो मेरे कमरे में भी आई थी, और बहुत अरसे बाद यहाँ आई तो मुझे भी ताज्जुब हुआ। कोई खास काम ही उसे यहाँ लाया होगा। वो चाहती है कि मैं ये कमरा छोड़ दूं। कैंट में कहीं उसने मेरे लिए 3 कमरों का एक मकान देख रखा है, और कह रही थी कि मैं उसमें मुंतकिल हो जाऊं। बात तो वो ठीक ही कह रही थी। नहीं, उसका लहजा बता रहा था कि वो नेक नीयती से ये बातें नहीं कर रही। मतलब ये कि आपने कमरा छोड़ने और कैंट वाले मकान में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। नहीं, मैंने इनकार नहीं किया, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करूंगा। और कब तक गौर करेंगे आप? उस वक्त तक गौर करूंगा जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि वो मुझे उस होटल से क्यों निकालना चाहती है। आपके ख्याल में वो क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन फौजिया की गुफ्तगू से मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि वो किसी के कहने पर यहाँ आई थी, और मैं इस वक्त यहाँ किसी के कहने पर नहीं आया हूँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल भी यही है कि आप ये कमरा छोड़ दें। किसी भी मोहल्ले में 2-3 कमरों का मकान लिया जा सकता है, और इस होटल में आते हुए वाकई अच्छा नहीं लगता। अगर आपसे गहरे मरासम ना होते तो मैं भी यहाँ आते हुए कतराता, सरवर नदीम और प्रोफेसर ने फूंकारने वाले अंदाज में कहा। उसकी आवाज के साथ ही सरवर नदीम ने प्रोफेसर की तरफ देखा, और बस ये देखना ही गजब हो गया। जैसे ही उसकी निगाहें प्रोफेसर की आंखों से टकराईं, उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी सारी तवानाई सल्ब हो गई हो। उसने बहुत कोशिश की कि अपनी निगाहें प्रोफेसर की आंखों से हटा ले, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और बात यह है कि अशोक मेहता को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं, और वह मुझसे इस मसले पर बराह रास्त बात कर सकता था। उसका ख्याल है कि आप यहाँ खतरे में हैं, सरवर नदीम ने किसी सहरज़दा शख्स की तरह कहा। और तुम क्या समझते हो? मेरा ख्याल भी यही है, सरवर नदीम ने कहा। अशोक मेहता आपको वाकई सांप समझता है, और उसका ख्याल है कि आप में गैर मामूली सलाहियतें हैं, और उन सलाहियतों को मनफी अंदाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मस्बत अंदाज में भी। और कुछ लोग आपकी इन सलाहियतों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल करने के मनसूबे बना रहे हैं, जबकि अशोक मेहता हुकूमत से बात करके आपकी सलाहियतों को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये बातें मुझसे भी कर सकता था। और प्रोफेसर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और मेरा ख्याल है कि 1-1.5 हफ्ते कबल ही वो मुझसे मिला था, लेकिन उसने इस अंदाज से कोई बात नहीं की। हम बहुत देर तक सिंध की कदीम तारीख पर बातचीत करते रहे, और उसका ख्याल था कि सरजमीन सिंध राजा महाराजाओं की दौलत से माला माल है। मैंने उसकी ख्याल की नफी नहीं की, और मेरा अपना ख्याल भी यही है। कदीम ज़माने में अक्सर बड़े लोग अपनी दौलत अपने साथ ले जाने की कोशिश करते थे, या फिर ऐसी जगह छुपा देते थे जिसका इल्म सिर्फ उन्हें खुद होता था। उनकी दौलत को ज़मीन के सीने में दफन करने में जो लोग उनकी मदद करते थे, उन्हें जिंदा रहना नसीब नहीं होता था। उन्हें इसलिए मार दिया जाता कि दौलत और हीरे जवाहर को दफन करने का राज ही रहे। और इस बारे में अशोक मेहता ने कभी बात नहीं की। मैं नहीं जानता कि उसने तुमसे ये बात क्यों नहीं की, और मेरे पास तो वह जब भी आता है किसी न किसी अंदाज में यही मौजू छेड़ देता है। इस बार तो वह मेरे पास सिंध का एक कदीम नक्शा लेकर आया था। कह रहा था कि इस नक्शे के असूल के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। उसने कहा कि नक्शा हासिल करने के लिए उसे कई बार बंबई जाना पड़ा। हाँ, और बंबई में सिंध का एक खानदान आबाद है, ऐसा खानदान जो खुद को राजा दहर के ताजो तख्त का वारिस कहता है। उस खानदान के एक बुजुर्ग का कहना है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उसका खानदान सिंध का दोबारा हाकिम बन जाएगा। और वो ये भी कहता है कि उसकी नस्ल मखलूत नहीं हुई, और वो ये कि जिस दिन उसके खानदान की कोई लड़की किसी गैर के तसर्रुफ में आ जाएगी, उसी दिन वो लोग अपने आबाई शहर मंसूरा की तरह तबाह हो जाएंगे। झूठ बोलता है। और सरवर नदीम ने कहा, सिंध की मुस्तंद तारीख ये बताती है कि अब तक हजारों बार राजा दहर का खानदान मखलूत हुआ होगा। मैं जानता हूँ। मेरा तो ख्याल है कि दुनिया में कोई नस्ल भी ऐसी नहीं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रॉस ना हुई हो, और हम में से कोई भी अपने असल होने का दावा नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। और प्रोफेसर राहील ने तेज सरगोशी की। मैं असल हूँ, अपनी ज़ात में बिल्कुल असल। हाँ, ज़माने के साथ साथ हमारे नज़रियात, ख्यालात, तसव्वुरात और मज़ाहब बदलते रहते हैं, और मैं कई सदियों से मुसलमान हूँ, इससे कबल मेरा ख़ानदान। अब आपका क्या प्रोग्राम है? और सरवर नदीम ने गुफ्तगू का रुख बदला। मैं आज अशोक मेहता से मिलना चाहता हूँ। अगर तुम चलो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और वहाँ नसार करमानी भी होगा। और ये आपसे किसने कहा? खुद नसार ने, और वो रात मेरे पास आया था। और क्या उसने भी आपको कमरा छोड़ देने का मशवरा दिया था? हाँ, उसका भी यही ख्याल है कि उस कमरे में रहकर मैं कम हसीयत हो रहा हूँ। और प्रोफेसर ने कहा, और मैं तुम्हें और नसार करमानी को खुद से ज़्यादा करीब महसूस करता हूँ, इसलिए कि तुम लोगों की नीयत पर शक करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन अशोक मेहता ठीक आदमी नहीं है।
आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं प्रोफेसर? मैं ऐसा समझने पर मजबूर हूं, प्रोफेसर ने कहा। हर इंसान अपने विरसे में मिली हुई तारीख याददाश्तों को रोशन करने पर कादिर है। बस एक अमल, एक कोशिश की जरूरत होती है। और आपकी बात तो आपके अपने सर से गुजर गई प्रोफेसर, यकीनन गुजर गई होगी। और प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फितरत की बात कर रहा हूं और फितरी हरकत और सकनात की बात कर रहा हूं। इंसान को विरसे में अपने बाप की कमीनगी, जहानत, कुव्वत अमल, बहादुरी, बुज़दिली और दीगर सलाहियतें भी मिलती हैं। और तारीख में बहादुर, जफाकश और ज़हीन कौमों का तज़किरा है। क्या इंसान नस्लन बहादुर नहीं होता, जफाकश और ज़हीन नहीं होता? होता है, ज़रूर होता है। जालिम और रहम दिल भी इंसान नस्लन ही होता है। मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं प्रोफेसर, और आपके एक एक नुक्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूं। परिंदे जब अंडों पर आते हैं तो उन्हें घोंसला बनाने की फिक्र होती है और वो तिनके जमा करके घोंसला बनाते हैं। हर परिंदे का घोंसला अपनी नोयत के एतबार से मुख्तलिफ होता है। चिड़िया का घोंसला अलग नोयत का, तो कौवे का घोंसला दूसरी तरह का होगा। ना तो चिड़िया के बच्चे अपने बाप और माँ को घोंसला बनाते हुए देखते हैं और ना कौवे के बच्चे, इसलिए कि घोंसला बनाने का अमल उनकी पैदाइश से पहले हो रहा होता है। लेकिन अपनी पैदाइश के बाद जब वो खुद अंडों पर आते हैं तो बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरह का घोंसला बनाते हैं। और ये क्यों कर मुमकिन है? अक्सर तो उन घोंसलों में सरे मुंह फर्क नहीं होता। और ये सब कुछ कैसे हो जाता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। इस सवाल का जवाब यही है कि चिड़िया अपने खून ही नहीं, अपनी याददाश्त, अपनी फितरत भी अपनी औलाद को विरसे में दे देती है, मुंतकिल कर देती है। और बिल्कुल उसी तरह इंसान भी अपनी औलाद को जो कुछ उसके पास है मुंतकिल कर देता है। मैं खुली फिजा में रहना पसंद नहीं करता और यकीनन ये मेरी फितरत का हिस्सा है। मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी ज़ुबान को मुसलसल हरकत में रखूं और मेरे कान सिर्फ नुमाइशी हैं, क्योंकि ये कुव्वत समाज से महरूम हैं। उसके बावजूद भी मुझे सुनाई देता है और मेरा जी चाहता है कि मैं पका हुआ गोश्त बिल्कुल ना खाऊं। कच्चे गोश्त की छोटी छोटी बोटियां पेट भरने तक निगलता रहूं। और मुझे प्यास कम लगती है और गुस्सा बहुत आता है। और यही नहीं, मैं अपने अतराफ व अकनाफ में मौजूद हर शय को शक भरी नज़रों से देखता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तो आप दोस्तों को भी शक की नज़र से देखते हैं। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते किसी को दोस्त समझना ही पड़ता है, तो वो भी मेरी निगाहों में मशकूक ही होता है। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि हमें अपनी हैसियत, ये बात नहीं, और तुम ये भी समझने की कोशिश करो कि मैं सांप ही नहीं इंसान भी हूँ। मेरी घुटी में सांप ही नहीं इंसान भी पड़ा हुआ है। मैं खलूस दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करने लगता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे ये सारे जज्बे वक्ती और लम्हाती होते हैं। ये बात तो नसार को भी मालूम है और उसकी साली नशीन मुझे अच्छी लगती है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन ना मालूम क्यों मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता। हालांकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसका दिल ना तोड़ूं, लेकिन फिर भी मैं उसका दिल तोड़ देता हूं। हाँ, मेरे इल्म में है और इस मसले पर मैं और नसार कई बार गौर कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मैं लड़कियों और मोहब्बत के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। प्रोफेसर ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे 18 साल की उम्र में ही यह एहसास हो गया था कि मोहब्बत किए जाने के काबिल हूँ। कई लड़कियों की आंखों में मुझे अपने लिए कशिश महसूस हुई और उन्हीं दिनों एक लड़की ने जुरैत का मुजाहरा करते हुए अजहार मोहब्बत कर ही डाला और आपने उसे ठुकरा दिया होगा। नहीं, अव्वल तो मुझे उसके साथ रहना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि जैसे वो मेरी दुश्मन हो, मोहब्बत के पर्दे में मुझसे नफरत कर रही हो। और इस एहसास के साथ ही मेरी आंखों में भी नफरत के रंग लहराने लगे और मैं उससे दूर हो गया। चंद हफ्ते तक तो वह मेरे करीब होने की कोशिश करती रही और मैं उससे दूर रहने की जुस्तजू करता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसने मेरी तरफ देखकर नफरत से फर्श पर थूक दिया। और मैं उस लड़की का नाम नहीं पूछूंगा, तुम पूछोगे भी तो मैं नहीं बताऊंगा। और प्रोफेसर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। दूसरी लड़की मुझसे उस वक्त टकराई जब मैं अंदाजे से अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा था और वो मेरे लिए अजनबी थी। मैंने उसे मदऊ नहीं किया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो मेरी एक मौसन की लड़की है। मेरे वो मौसन भी सालगिरह पार्टी में शरीक थे और तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने अपनी लड़की से मेरा तारफ़ कराया।
उन्होंने ये भी बताया कि वो चंद दिन पहले ही सियालकोट से आई है और क्या वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, बहुत हसीन थी और उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत उसके हुस्न को दो चांद करती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये लड़की मुझे बस पहली मुलाकात में ही अच्छी लगी और बाद में जितनी बार वो मेरे पास आई मेरा जी चाहा कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊं। तीसरी या चौथी मुलाकात में ही उसने महसूस कर लिया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मगर उसके बावजूद भी वो मेरे करीब होने की कोशिश करती रही और मैं उसे बर्दाश्त करता रहा। फिर जब उसने इशारों के नाम में अजहार इश्क फरमाया तो मैंने ये कहकर माजरत कर ली कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। उसे आपकी बात पर यकीन आ गया था। नहीं, शायद उसे यकीन नहीं आया था और वह मुसलसल इसरार करती रही कि मैं उस लड़की का आता पता बताऊं या उसकी तस्वीर ही दिखा दूं। फिर एक मुलाकात में वो मुझसे खौफजदा हो गई और उसका इश्क हरण हो गया। खौफजदा हो गई, हाँ खौफजदा हो गई थी, प्रोफेसर ने कहा। और शाम के साए ढलने लगे थे जब वो मेरे कमरे में आई थी। मैं कुछ पीने के बारे में सोच ही रहा था कि वह कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नागवार सा लगा, लेकिन मैं अपने मौसन की खातिर उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था और मैंने उसे कुर्सी पेश की और खुद उसके सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसने इधर उधर देखते हुए सरगोशी की कि मुझे यहाँ सांप की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। सांप की मौजूदगी? हाँ, सांप। और प्रोफेसर ने गहरी सांस भरते हुए कहा। और मैंने उससे पूछा, क्या कभी तुमने सांप करीब से देखा है और क्या तुम उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकती हो? और मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि उसके मामू सांपों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनके घर में भी मुख्तलिफ किस्म के सांप मौजूद हैं। वो खुद उन सांपों के दरमियान कई साल रही है और इसलिए अपने अतराफ व कनाफ में कहीं भी सांप हो तो उसे उसका एहसास हो जाता है। अजीब बात है। नहीं, ये बात कोई अजीब नहीं है। सपेरों को भी सांप की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और सांपों के करीब रहने वाले लोगों को किसी भी जगह ले जाएं और अगर उस जगह सांप होगा तो वह फौरन कह देंगे कि यहाँ कहीं सांप मौजूद है। उस लड़की का एहसास सच्चा था और कमरे में सांप मौजूद था। आप कमरे में सांप मौजूद? हाँ, मौजूद था और उसके सामने बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने सरवर नदीम की बात काटते हुए कहा। और जिस वक्त वह कमरे में दाखिल हुई तो मैं खुद को सांप ही समझ रहा था। जब मैं खुद को सांप महसूस करने लगता हूँ तो दूसरों को भी अपने करीब मौजूद सांप का एहसास होने लगता है। और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा एहसास सच्चा है क्योंकि सांप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। उस फिक्रे की अदायगी के बाद उसने चौंक कर मेरी आंखों की तरफ देखा और उसके रस भरे होंठों से एक भयानक सी चीख आजाद हो गई। वो कुर्सी से उठी और फिर दूसरे ही लम्हे वो कमरे से बाहर थी और मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अच्छा प्रोफेसर, अब मजाक खत्म, सरवर नदीम ने कहा, और इस अंदाज की फालतू बातें फिर किसी वक्त करेंगे। फिलहाल तो आप मुझे ये बताएं कि मकान। मैं बता चुका हूं कि मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगा, प्रोफेसर सरवर ने नदीम की बात काटते हुए कहा। और ये मजाक नहीं है प्रोफेसर, आप संजीदा हो जाएं। खतरा लम्हा बिलम्हा आपकी तरफ बढ़ रहा है। और सरवर नदीम ने धीमी आवाज में कहा, खत्म करो इस बात को। और प्रोफेसर ने सरवर नदीम की बात कता करते हुए कहा, शायद तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि मेरी जात बहुत अरसे से खतरे में है। फिर तो यह परेशानी की बात है। और प्रोफेसर, कोई आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और प्रोफेसर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मुझे नुकसान पहुंचाना मेरे दुश्मनों के बस में नहीं। अशोक मेहता या प्रोफेसर मार्टन आपसे क्या चाहते हैं और इसका इल्म तो हमें नहीं हो सकता, लेकिन यह बात खुल गई है कि मार्टन अशोक मेहता की दावत पर ही यहाँ आ रहा है। तुम जानते हो अशोक मेहता मुझसे क्या चाहता है? और प्रोफेसर ने अचानक ही सवाल किया। नहीं, हम में से कोई भी नहीं जानता। मैं जानता हूं, प्रोफेसर ने सरगोशी की। आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि खतरे के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अशोक मेहता आपसे क्या चाहता है। अगर तुम पूछोगे भी तो मैं बताऊंगा नहीं, प्रोफेसर ने कहा। और प्रोफेसर मार्टन को भी मैं जानता हूं। वो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके तहरीर करदा मुकालमे मेरी नज़र से गुजरे हैं। जिस शोबे से उसका ताल्लुक है उस शोबे से अशोक मेहता का भी है। और अशोक मेहता बदनीयत आदमी है और मेरा ख्याल है कि मार्टन भी। आप आज अशोक मेहता की तरफ जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, प्रोफेसर ने दो टोक अंदाज में कहा। कल क्या प्रोग्राम है आपका?
सुबह कमरे पर ही रहूंगा, अगर कहीं गया भी तो दोपहर के खाने के बाद जाऊंगा और फिर रात से पहले ही वापसी होगी। ठीक है, तो फिर मैं और निसार सुबह यहाँ आ जाएंगे। सरवर नदीम के कमरे से निकलने के बाद प्रोफेसर के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोचा कि मैं राहील अफी हूँ और जिसे मैं डसूंगा उसे पानी तक मांगने की मोहलत नहीं मिलेगी। अशोक मेहता तो मेरा पुजारी है, वो मेरी मर्जी का पाबंद है और वो मेरी पूजा करेगा। पूजा और कमरे के खुले दरवाजे में होने वाली हल्की सी दस्तक ने प्रोफेसर के ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। होटल का बेरा ट्रे में जग, गिलास और बर्फ के टुकड़े लिए खड़ा था और प्रोफेसर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उससे ट्रे ले ली। बेरे के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। वजारत सकाफत के आला अफसर एहसानुल हक ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट वाली फाइल एक तरफ रखते हुए इंटरकॉम उठाकर कहा, मिस्टर अरफान अंदर आ जाएं। जी जनाब। और अरफान उल्लाह ने कमरे में दाखिल होकर कहा, बैठ जाएं। एहसानुल हक ने धीमी मगर बारोब आवाज में कहा, और आपने रिपोर्ट पढ़ ली? हाँ, मैंने बहुत गौर से और कई बार पढ़ी है, अरफान उल्लाह ने कहा, और जो कुछ हमें मालूम हुआ है वो हरफ बहरफ सही है। कुछ बातें इस रिपोर्ट में नहीं भी हैं। एहसानुल हक ने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, एक जगह लिखा है कि प्रोफेसर राहील ये दावा भी करता है कि बसा औकात वो दीवारों की दूसरी तरफ भी देख सकता है, जैसे कोई खिड़की के शीशे से कमरे का नज़ारा करे। मोटी से मोटी दीवार उसके लिए शीशा साबित होती है, और ये मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं। ज़मीन के अंदर 20-22 फुट तक देख लेने पर आपको यकीन आ गया, क्यों? और इस पर मुझे भी यकीन नहीं है। प्रोफेसर अपनी अहमियत में इजाफा करने के लिए भी तो इस अंदाज की बातें अपने दोस्तों से कर सकता है। ये मैंने भी सोचा था, लेकिन प्रोफेसर के ज़हन में क्या ये बात नहीं है कि किसी वक्त भी उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, और ऐसे वक्त कोई न कोई बात बनाई जा सकती है। झूठ के पांव नहीं होते, और एक बार किसी का भरम चला जाए तो फिर जिंदगी भर के लिए दूसरों की ही नहीं अपनी नज़रों से भी गिर जाता है। प्रोफेसर इस हकीकत से यकीनन आगाह होगा। ऐसी सूरत में वह अपने बारे में या अपनी सलाहियतों के बारे में कोई गलत बात नहीं करेगा। उसने अपने दावे का मुजाहरा तो अपने किसी दोस्त के सामने नहीं किया। हाँ, ये बात तो है। खैर, प्रोफेसर की तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि खासी पुरकशिश शख्सियत है, बिलखसूस औरतों के लिए। आप मजमूई तासर की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद आप जिस्म के हर हिस्से को अलग अलग देखें, दहाना, पेशानी, नाक, कान, ठोड़ी, गर्दन, आंखें, सर, बाल और कद, और रिपोर्ट में उसकी गुफ्तगू करने के अंदाज, चाल और गुस्से पर भी रोशनी डाली गई है। लड़कियों के मामले में उसकी बेहसी की बात भी गौर तलब है, और फिर उसके माँ बाप और उसके पालने वाली का जिक्र भी है। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी रही और यूं लग रहा था कि जैसे दोनों ही किसी न किसी नुक्ते पर गौर कर रहे हों। जो कुछ प्रोफेसर अपने बारे में कहता है, अरफान उल्लाह ने धीमी आवाज में खामोशी को तोड़ा, और इस किस्म की बातें तो कोई खबती ही कर सकता है। प्रोफेसर खबती नहीं है, और रिपोर्ट में भी उसे खबती नहीं लिखा गया। चूंकि वो खबती नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो हमारे काम का आदमी है, और हम उसके इल्म और उसकी खसूसियात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब हमें उससे मुलाकात में देर नहीं करनी चाहिए, और उससे मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें मौजूद सलाहियतों और खसूसियात की आजमाइश हो जाए तो, और उससे दूर रहकर तो हम उसकी आजमाइश नहीं कर सकते। एहसानुल हक ने कहा, आजकल यूनिवर्सिटी बंद है, इसलिए उसे फुर्सत भी है, और उस फुर्सत से हम फ़ायदा उठाएं, लेकिन किस तरह? वो सरकारी मुलाजिम है, और हम भी उससे सरकारी हैसियत से ही मिलेंगे। और रिपोर्ट में ये बात तो साफ साफ लिखी है कि वो लालची, बददियानत, झूठा और खुद गर्ज आदमी नहीं है। अपने काम से काम रखता है और किसी सियासत में नहीं पड़ता। और सबसे बढ़कर ये कि वो मुहब्बे वतन भी है। और ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी रोशनी में हम उसे मुल्क और कौम के लिए काम करने पर आमादा कर सकते हैं। अगर वो तैयार हो गया तो हम अपनी ज़ैर ज़मीन मौजूद तारीख को उजागर करने का काम कर सकते हैं। आपकी बात दिल को लगती है। मालूम नहीं कितने मोहनजोदड़ो ज़मीन के सीने में दफन हैं, और हमारा तमद्दनी और तहजीबी सफ़र मोहनजोदड़ो से शुरू नहीं हुआ। हाँ, ये एक आम सी बात है, और मोहनजोदड़ो की तहजीब से कबल भी कोई तहजीब परवान चढ़ रही होगी, और उस तहजीब के आसार ज़मीन के सीने में कहीं ना कहीं ज़रूर दफन होंगे। जब दरियाए नील के किनारे तहजीबें परवान चढ़ रही थीं,
और तबाह हो रही थी, तो दरियाए सिंध के किनारे भी तो ऐसा ही हुआ होगा। और दरियाए सिंध या महरान जितना कदीम है, उतना कदीम किसी और तहजीब के आसार भी तो होंगे। क्यों नहीं, जरूर होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, अरफान उल्लाह ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अगर प्रोफेसर ने हमारे महकमे के साथ तावन करने पर आमादगी का इजहार किया तो उसे मुलाजमत की पेशकश की जाएगी, क्योंकि वो काम का आदमी है। अब किन महीनों में उसे काम का आदमी कह रहे हैं, और इस मसले पर अब बात उसी वक्त होगी जब मैं ऊपर बात कर लूंगा। एहसानुल हक ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अब तुम जाओ और मैं एक बार फिर रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। एहसानुल हक ने फाइल उठाकर खोलते हुए कहा। 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 13 में प्रोफेसर मार्टिन बड़ी बेचैनी से टहल रहा था, और उसकी महबूबा आलिया कमाल, जिसे वो अपनी सेक्रेटरी कहता था, एक रसाले की वर्कगर्दानी कर रही थी। जैसे उसे पढ़ने का फैसला नहीं कर पा रही थी। आलिया कमाल का तलक तुर्की से था और वो कई बरसों से प्रोफेसर मार्टिन की सेक्रेटरी थी। वो बला की ज़हीन और मार्टिन के मजाज शनास थी, और मार्टिन की बेचैनी ने उसे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। 2 हफ्ते पहले जब वो यहाँ पहुंची तो उसे प्रोफेसर राहील से मुलाकात करके उसे शीशे में उतारना बहुत आसान काम लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन ही उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि यह काम इतना आसान नहीं। तीसरी शाम ही अशोक मेहता ने इतला दी कि प्रोफेसर राहील की निगरानी शुरू हो गई है। मेहता के ख्याल में निगरानी करने वालों का तलक इंटेलिजेंस से था, और बाद में उसकी तस्दीक भी हो गई। जब प्रोफेसर को यह इतला मिली कि वजारत सकाफत के 2 आला अफसर प्रोफेसर राहील से मुलाकात करने वाले हैं, तो उसने बेइज्जत प्रोफेसर को अगवा करने का मंसूबा बनाया। मार्टिन के मंसूबे के मुताबिक प्रोफेसर को उसके होटल के सामने से अगवा किया जाना था। तय ये पाया था कि फ़ोन करके प्रोफेसर को होटल से बाहर बुलाया जाए और उसे धोखे से ऐसी चोट लगाई जाए कि वह बेहोश हो जाए, और उसके बाद उसे कार में डालकर उस मकान में पहुंचा दिया जाए जो औरंगी के इलाके में पहले ही से किराए पर ले लिया गया था। यह सारा काम आधी रात के बाद किया जाना था, और आधी रात से कबल ही प्रोफेसर मार्टिन ने कमरे में टहलना शुरू कर दिया था। अशोक मेहता ने भी कोई फोन नहीं किया, और आलिया कमाल ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि अगर खैरियत ना होती तो वो कहीं ना कहीं से जरूर फोन करता। उसे सब ठीक है का फोन भी कहीं ना कहीं से करना चाहिए था। क्या प्रोफेसर राहील की निगरानी की जा रही है? और आलिया ने एक दूसरा सवाल कर दिया। नहीं, मार्टिन ने हाथ में दबी हुई सिगरेट को ऐश ट्रे में मसलते हुए कहा। शायद 4 दिन पहले से उसकी निगरानी खत्म कर दी गई, और ये इतला भी मुझे अशोक ने दी थी, और बाद में खुद मैंने चेक किया। इतला दुरुस्त थी, और तुम्हें तो मालूम है कि जिस रात हम मुलाकात का प्रोग्राम बना रहे थे, उसी रात मालूम हुआ कि वजारत सकाफत के 2 अफसर उससे मिलने आ रहे हैं, और उसके बाद ही मुझे अपने प्रोग्राम में तब्दीली करना पड़ी। अशोक मेहता तो भरोसे का आदमी है ना, क्यों नहीं, और राहील उसी की दरियाफत है। मार्टिन ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा, और फिर उसका अपना भी मफाद है। हमारा मुश्तरका मफादात ही हमें एक दूसरे का वफादार रहने पर मजबूर करते रहेंगे, और तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं करती, लेकिन आपको परेशान और फिक्रमंद देखकर। मैं परेशान और फिक्रमंद इसलिए हूँ कि जिन अफराद को प्रोफेसर के अगवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं खुद उनसे नहीं मिला हूँ, न उनके बारे में कुछ जानता हूँ, और पता नहीं कैसे लोग हैं। अगर उन्होंने काम बिगाड़ दिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मार्टिन ने आलिया कमाल की बात काटते हुए कहा। अशोक ने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है, तो वो ठीक ही लोग होंगे। हैं कितने? 3 अफराद हैं, और बेकौले अशोक बहुत तेज, तजर्बेकार और ऐसे कामों के माहिर हैं। बस तो ठीक है, फिर इत्मीनान रखें, और वह अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। आलिया कमाल ने रिसाला एक तरफ रखते हुए कहा। एक जाम बना दूं आपके लिए? हाँ, ये काम कर दो। प्रोफेसर मार्टिन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आलिया ने जाम तैयार करके मार्टिन की तरफ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी चीख पड़ी, और मार्टिन ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, और दूसरी तरफ से कहा गया, कौन? और प्रोफेसर मार्टिन, काम तो हो गया, लेकिन वह जख्मी हो गया है, जख्म गहरा है। फिर आप यहाँ पहुंचने की कोशिश करें, और मैं उसके करीब ही रहना चाहता हूँ। और फिर इससे पहले कि मार्टिन कुछ कहता, दूसरी तरफ से सिलसिला मुंतके हो गया। मार्टिन चंद लम्हे हाथ में दबे हुए रिसीवर को खाली खाली नजरों से देखता रहा, और फिर उसने एक लंबी आह भरते हुए रिसीवर रखकर सोचा कि यह अशोक मेहता ने सिलसिला क्यों मुंतके कर दिया। आलिया कमाल ने तशवीशनाक अंदाज में प्रोफेसर मार्टिन की तरफ देखते हुए पूछा,
क्यों प्रोफेसर, क्या हुआ? काम तो हो गया। और मार्टिन ने दबी दबी आवाज में कहा। प्रोफेसर जख्मी तो हो गया है, लेकिन प्रोफेसर के जख्मी होने से ज्यादा परेशान कौन बात यह है कि अशोक मेहता ने बगैर बात मुकम्मल किए ही राब्ता मुंतकिल कर दिया। क्यों? और उसने ऐसा क्यों किया? बोल कहाँ से रहा था ये तो नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मकान के करीब ही से बोल रहा होगा। और वो तीनों जिन्होंने अगवा किया वो तो रास्ते में ही कहीं उतर गए होंगे, और मंसूबा तो यही था। फिर क्या ख्याल है, चलें? आलिया ने सोफे से उठकर मार्टिन के गले में बाहें डालते हुए कहा। और वह मूड तो कुछ और ही था, और उस भाग दौड़ में तुम मुझे बहुत नजरअंदाज करने लगे हो, और अब ये निकलने से पहले। अरे नहीं, दूर हटो, मार्टिन ने कहा। और तुमने तो आजकल वक्त और हालात का ख्याल करना भी छोड़ दिया।